ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੁਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੁਲਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਧਰੁਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਮਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,
पर जज्बा जिहड़ा है उस तरह का होंदा है, हर एक फील्ड के अंदर होंदा है, भावें वो किसी भी फील्ड के अंदर होवे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते हैं, आ मैं तेनों दसां भी रब की भगती कीती किवें जांदी है। अज मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जिहड़े बचन बख्शे ने, बाबा फरीद साहब जी ने इस्त्री रूप दे विच संबोधन किया है, क्योंकि साहब की बाणी कहती, इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सपाई। पुरख परमात्मा है जिन्हों असीं करता पुरख कहने, सब कुछ बनाने वाला पुरख परमात्मा है। बाकी सतगुर कहते हैं सब जिन्ने भी ने जीवे सब परमात्मा दियां नारां ने, पावां दे हुक्म विच चलण वाले ने, उनकी नियमावली विच जीवन जीण वाले ने। ये कुदरत उनकी साजी हुई है, कुदरत उनके हुक्म विच चलदी है। उन्हें कुदरत ने कुछ नियम बनाए ने, कुछ कानून बनाए ने, कुछ नियमावली बनाई। उहदे विच हर बंदे नूं, जीव नूं, पशु नूं, पंछी नूं, जो जीव पैदा होया उहनूं चलना पैंदा है। ते बाबा फरीद साहब कहते हैं, अज ना सुती कंत स्यों। अज का मतलब है इस वक्त, अज के दिन, अज के वक्त मैं अपने कंत परमात्मा रब जी के नाल मिलाप हासिल नहीं किया। सुती का भाव होंदा है मिलना। अज के दिन मैनूं मेरे परमात्मा का वसल नहीं मिलिया, मैनूं मेरे परमात्मा की गोद का निग नहीं मिलिया। मैं इंज कह लूँ, मैं अज का दिन मैं अपने मालक की भगती नहीं कर सकिया। ते बाबा जी कहते हैं, अंग मुड़े मुड़ जाए। मुड़े मुड़ जाए एक मुहावरा है। मुड़े मुड़ जाए का मतलब है दुखी होना, एक एक शरीर के अंग के विच दर्द पैदा होना। अज मेरे पूरे शरीर के अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है। वो पीड़ा केड़ी है? अपने मालक के नाल मिलाप ना होने की, अज का समा खुंजाण की। इंज कह समझ लो इस गल नूं भी मान लो असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में सानू 2 वक्त का सतगुरु ने नेम दिता है, जिन्हों असीं नितनेम कहते हैं। सवेरे 5 बाणियां का नेम है, शाम को श्री रहरास साहिब जी की बाणी है, सौण वेले सोहले साहिब जी की बाणी। ये नेम है सिख के जीवन का। हुण इस नेम को सतगुरु कहते हैं, तू अपने जीवन में हर दिन निभाना है। इस नेम के विच सतगुरु कहते हैं, तेरे को कोई छूट नहीं है भी तू आके मेरी अज नहीं किया, कोई गल नहीं, कल नहीं करांगा, कोई गल नहीं, साल बाद कर लवांगा, 2 साल बाद कर लवांगा, नहीं। ये तेरा कंपलसरी है। मान लो अज किसी सिख ने सवेरे अमृत वेले उठ के नेम नहीं निभाया, तो उनकी मालक नाल प्रीत ऐसी है, प्रेम ऐसा है कि किसी ऐसी कारण विच उलझ गया, किसी ऐसे कारण विच पै गया भी वो अपना शरीर का नेम नहीं निभा सके। तो हुण बाबा फरीद साहब कहते हैं, मेरे मालक उनकी अवस्था की होएगी? अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। तो अगला सवाल उन्होंने किया है उन्होंने लोगों को जिन्होंने कभी रब को चेते नहीं किया। तो आंदे ना बड़े ना शुक्रे ने इस धरती के उत्ते जिहड़े रब का परमात्मा दीआं दातां वरत के कभी शुक्र नहीं करते। बाबा जी कहते हैं, जाए पुछां दुहागणी। दुहागणी के आखिरी अर्थ होंदे ने दुहागण। ते दुहागण उन्होंने कहते हैं जिहड़ी पति वालों फिटकारी हुई होवे। ध्यान देना, शब्द जिहड़े साडे समाज विच वरते जांदे 2 शब्द ने। एक शब्द है सुहागण, एक शब्द होंदा है दुहागण या दुहागण। असीं कहते हैं शब्द दुहागण का मतलब होंदा है 2 राहां ते चलण वाली। पातशाह जी ने बाणी अंदर बड़िया एग्जाम्पल दित्तियां ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। हुण पातशाह कहते हैं कोई होवे सुहागण, उन्हें सुहागणा वाला वेश भी पाया होवे, पर उनके कर्म सुहागणा वाले ना हो। गुरबाणी का जिहड़ा वचन है, भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक एग्जाम्पल भी बड़ी प्यारी दी। वो कहते हैं, नाम सुहागण कर्म है दुहागण के। नाम तो सुहागण बन गया, तो कर्म की बन गए दुहागणा वाले। भाव जिहड़े चिन्ह पाए ने अपने शरीर के उपर, वो तो पा ले धर्मियां वाले। सवेरे उठता है, मत्थे ते तिलक भी ला लेता है, एक बड़ी सोहनी माला हाथ से भी पाई है, गले च भी पाई हुई है। ये चिन्ह धर्म दे। बंदा दिखावा बड़ा करता है संसार के अंदर। तुसीं वेखिया होना कईयां नूं, उन्हां दा जीवन वो नहीं होंदा, पर बाहरों बड़ा कुछ होता है।
बाहरों विखावा बड़ा बड़ा डूंगा होता है भी इंज लगता है भी शायद इहदे वर्गा धर्मी कोई नहीं दुनिया से। हुण बाबा जी कहते हैं जिहड़े कर्म ने वो दुहागणा वाले ने, जिहड़े कर्म ने वो धर्मियां वाले नहीं है, पर पहरावा धर्मियां वाला पाया। नाम सुहागण कर्म है दुहागण के हृदय भी विचार कत सिर जा बुलाई। हिरदे के अंदर भी विचार है, अपने मालक का प्यार नहीं, अपने सतगुर के हुक्म को मनण की चाहना नहीं, कभी अपने मालक के हुक्म विच नहीं चलिया, सिर्फ बाहरी चिन्ह बनाए रखे। जिन्हों धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहते हैं कि परमात्मा की भगती तो बिना रब नहीं मिलता। जे अनेक करे श्रृंगार, जे तू अनेका श्रृंगार भी बना लवे, पर बाहरी दिखावा बहुत कर लवे, पर अंदर प्यार कोई ना हो। बड़ी प्यारी एक एग्जाम्पल मैं नाल देता जावां, गल होर समझ विच है, क्योंकि विशा सबजैक्ट बड़ा ही टिपिकल है, बहुत औखा है। ये समझण दे लई सानू अपने अंदर पहली गल ते उत्थे खड़ा होना पेगा जिथों बाबा जी गल कर रहे हैं। दो तरह का जीवन, एक धर्मी का होंदा, एक अधर्मी बंदे का होंदा। एक इन्हां दोवां दे विचकार बंदा होंदा जिसका दिखावा धर्मियां वाला होंदा है, पर कर्म अधर्मियां वाले होंदे। हुण जिहड़ा इहो जिहा बंदा है उहनूं समझना बड़ा औखा होंदा है, उहनूं नापना बड़ा औखा होंदा है। तुसीं उहदी परिभाषा किवें नूं कहोगे भी आ बंदा इहो जिहा। देखो जिन्हें रब नूं नहीं मन्निया, असीं कह दिता भी ये रब नूं नहीं मनदा, इस करके ये अशब्दक है, ये नास्तिक है, क्योंकि उन्हें तो कह दिता मैं मनदा ही नहीं। एक बंदा है जिहड़ा कहंदा मैं रब ते बहुत फेथ करना, मैं बहुत बिलीव करना, मेरे परमात्मा के हुक्म विच ही चलना, जीवन जीना। तुसीं मन लिया भी ये बंदा बड़ा धर्मी है। हुण इन्हां दोवां दे विच एक बंदा होर है जिंदा दिखावा ते धर्मियां वाला है, और उनके कर्मां दे विचों धर्म किते भी नहीं। ऐसे बंदे को समझना बड़ा औखा होंदा है। भगत नामदेव जी ने एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी, कहते कोई सज्जन साधु, कोई परमात्मा की बंदगी करने वाला, रब की इबादत करने जा रहा सी। उन्होंने रस्ते में एक साधु होर मिल गया। हुण अपने वर्गा कोई मिल जाए तो उनकी संगत बंदे हर एक को प्यारी होंदी है भी चलो एक मेरे वर्गा होर मैनूं मिल गए। रस्ते में जान लग्या एक सरोवर सी जिथे साधु रोज इशनान करता सी, फिर मंदिर में जाता सी। अज भी इशनान करन लगा है ते उहदे कोलों जिहड़े उहने अपने वस्त्र सी नदी के कंढे ते लाए, उहदे कोलों कुछ धन सी। वो धन उहने अपने कपड़ियां दे थल्ले, कपड़े दे विच बन्निया होया सी, अपने कपड़ियां दे थल्ले रख दिता। आप इशनान करन गया, वो जिहड़ा साधु सी वो जिहड़ा सी वो कहंदा भी तुसीं इशनान कर लो, मैं इशनान पान करके चलिया, मैं तुसीं जिन्नी देर तक इशनान करना उन्नी देर तक मैं चौंकड़ी मार के बंदगी कर लेना, रब नूं याद कर लेना। वो कहंदा भलिया भी बड़ी चंगी गल है। वो इशनान करन गया, वो कंढे ते बह गया। हुण जिवें इशनान करने वाला साधु, हुण उहदे मन विच कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उहनूं पता है भी ये बंदा ते मेरे वर्गा ही है, मेरी कैटागरी दा ही है। फर्क सिर्फ इन्ना है मैं इशनान पानी तो करके अगे जाना, घरों करके आया, वो बंदगी विच मशरूफ है। जिन्नी देर जो इशनान पान करके आया उन्हें अपने वस्त्र तन ते पाए, की वेखदा जिहड़े कपड़े दे विच धन बन्निया होया सी, माया बन्नी हुई सी, वो कपड़ा उत्थे नहीं है। बड़ा परेशान होया भी कमाल दी गल है, इत्थे कोई तीजा बंदा है भी नहीं। हुण संकोच करदा भी इहनूं पुछां भी किवें, पुछदियां भी संकोच करदा भी है ते मेरे वर्गा ही। जे इहनूं पुछांगा ते इहदा मतलब एक सोचेगा इहदे मन विच यह है भी मैनूं चोर समझदा है ते मैं भी इहदे वर्गा धर्मी हां। हुण वो बेचारा पुछण विच भी शर्म महसूस करदा है। हुण जदों शर्म महसूस कीती, मन च सोचदा भी मना चलो कोई गल नहीं, अज दा समां मालक ने इहो कुछ लिखिया सी जीवन विच। वो इवें अपने वस्त्र पा के जो तुरन लगता है, उन्होंने आवाज़ मारता, कहता चल भगता आप चलीए अपनी मंजिल वाल। वो उठता, उन्हें जोड़ा कपड़ा विछाया होता ना उनको चेता भुल जाता भी कपड़ा चुकन लग्या भी मैं वो थल्लों पोटली भी चुक लवां। जिवें उठता है हवा का बुला होता, कपड़ा भी चुकिया जाता है, थल्ले कपड़े के विच बन्नी हुई माया उन्हें नज़र आ जाती है। पता लग जाता भी इसे बंदे ने चोरी की है। भाई साहब भाई नंद लाल भगत नामदेव जी ने बड़े प्यारे बचन कहते, सांप कुंज छोड़ा है, जिहड़ा सप होंदा है ना, सप वो कहते ने कुंज छड्डदा है
पर कोई बंदा उसकी कुंज नूं वेख के आखे भी इन्हें जहर डंग मारना छड़ दिता है, जाके मैं फड़ लवां। वो कहते ने सांप कुंज छोड़ा दिख नहीं छड्डे। भगत नामदेव जी कहते ने सप का सुभाव है वो अपनी कुंज छड्ड दिंदा है। कुंज मतलब उसके शरीर के उपर की परत, मास की एक परत, वो 2 महीने 6 महीने बाद वो एक कुदरती नियम है भी वो अपने उपर के शरीर की कुंज नूं त्याग दिंदा है। फिर उसके शरीर से नवी चमड़ी आती है। भगत जी कहते ने सप जो कुंज छड्डदा है तो मतलब ये नहीं है भी इन्हें डंग मारना छड्ड दिता है, नहीं, सप का सुभाव है। कहते इस तरह कई बंदे होंदे ने उन्हों का पहरावा बाहरों धर्मियों वाला होंदा है, पर सच विच उन्हां दे कोलों बैठो तो डंग मारना नहीं छड्डदे हो। भगत जी कहते ने अज ना सुती कंत स्यों अंग गुड़े मुड़ जाए, जाए पुछां दुहागणी। मैं उन्हां दुहागणां नूं पुछ रही हां जिन्हां कदी रब नहीं चेते कीता, तुम क्यों रहण विहाए, तुहाडी सारी जिंदगी की रात किवें लंघ गई। बड़ा कॉमन जिहा सवाल है भी तुसीं अपना जीवन किवें बतीत कर रहे हो। मैं एक दिन अपने रब नूं नहीं चेते कीता। यह है प्रैक्टिकल जीवन विचों निकले हुए बोल। एक दिन रब नूं नहीं चेते किया। भगत जी कहते हैं मेरे अंदर बड़ा वैराग पैदा होया भी अज रब जी समा पुंज गया, वो समा हुण वापस नहीं आ सकता जिहड़ा लंघ गया। पर भगत जी कहते हैं जिन्हां सारी जिंदगी कभी परमात्मा नूं चेते नहीं किया, रब के गुण नहीं गाए, कभी उनका शुक्र नहीं किया, कभी उनका धन्नवाद नहीं किया, कभी उनदियां दातां वरत के कभी नहीं आखिया मेरे मालक जी तू दाता दातार तेरा दिता खावना। भगत जी कहते हैं उन्होंने लोगों का उन्होंने दुहागणा का जीवन किहो जिहा होएगा। बड़ी डूंगी गल है जे समझिए तो ये संसार के अंदर जिहड़े असीं जीव आना वैसे सतगुरु की पावन बाणी ने सानू हर जीवन के पड़ाव में परमात्मा के शुक्र नाल जोड़िया। गुरु अर्जन साहब जी के वचन तुसीं रोज पढ़ते हो, जे प्रसाद सती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे, जे प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर। पातशाह कहते उन्होंने सदा चेते कर। पर भगत जी कहते हैं सच विच इहो जे भी बंदे ने जिन्हां कदी रब नूं नहीं चेते किया, क्योंकि नेम वालियां दा नेम टुट जाए तो उन्होंने मौत प्रतीत होती है। गुरु रामदास साहब जी का एक वचन तुसीं पढ़दे हो, पातशाह कहते ने हर बिन रह ना सकै मन मेरा। सतगुर मेरा मन परमात्मा जी तुहाडे नाम तो बिना नहीं रह सकता। हर बिन रह ना सकै मन मेरा, जियो अमलै अमली बिन मर जाई है। जिवें अमली अमल तो बिना मर जाता है। सतगुर पातशाह कहते हैं जिवें किसी अमली को अमल ना मिले। जिहड़े अमली बंदे होंदे ने ना जिन्होंने अमल अमली का भाव होता है जिहड़े ड्रग्स का सेवन करते हैं। ध्यान देना मालक ना करी कभी किसी के घर में ऐसी कोई नौबत आवे, पर तुहाडे विचों जिन्हां किसी ने ऐसे बंदियां नूं वेखिया ना वेखिया होना है, उन्होंने समय से वो ड्रग्स ना मिले अमल ना मिले तो वो अपने मारन तक जाते हैं। ध्यान देना जिहड़ा बच्चा कहता मां मेरा तेरे चरणों में स्वर्ग है, तो जिन्हें ड्रग्स की आदत लग जाती ना अमल की, तो समय से अमल ना मिले तो मां को भी मारन लग्या वेखदा नहीं भी कौन है, क्योंकि उस अमल ने अंदर की मत मार दी, खत्म कर दी, सोचन की समर्था खत्म कर दी। धन गुरु अमरदास पातशाह गुरु रामदास जी कहते हैं मेरे मालक जी इस तरह मेरा मन तुहाडे चरणों में जुड़ गया, तुहाडे तो बिना नहीं एक निमक मात्र समा भी रह सकता, जिन्हें अमली तो बिना अमली अमल तो बिना नहीं रह सकता। सिर्फ एक समझने की गल है भी एक पॉजिटिव थिंकिंग एक नैगेटिव सोच विचों भी सतगुरु सानू दे रहे हैं। पातशाह जी कहते हैं अपने अपने जीवन में वेख तेन बड़िया ऐसिया उदाहरण मिलनगियां, बंदे कह भी की करिए जी, शाम जिन्नी देर तक रात को नींद नहीं पैंदी जिन्नी देर तक शराब ना पी लईए। तुहानू ऐसे भी मिलणगे बड़े, साडे घरां विच ही हुंदे ने, बाहर असीं की जाना है भी जिन्नी देर पीण वाली उन्नी देर नींद नहीं आती। धन गुरु रामदास पातशाह कहते हैं मैं जिन्नी देर अपने मालक को चेते ना कर लवां उन्नी देर तक मैनूं इंज लगता है जिवें बाबा फरीद साहब कहते हैं आंख मुड़े मुड़ जाए। मेरे शरीर के अंदर मान लो जिवें किसी अमली को तोड़ पैंदी है, इस तरह मैनूं तोड़ पैंदी है। बस गल समझण दी जिन्हां दे अंदर नेम की भावना बन जाए
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨੇਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਨੇਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਾ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਬਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਤਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੰਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਚਾਉ ਚਾਈ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਏ ਅਵਗਣ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੋ ਪਲਾਇਨ ਜੋ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਬਣੇ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਗੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
उस करते ने जिहड़ी कला संसार विच वरताई है ना, उहदी कला दे उपर कदी भी जो कुछ वापरदा है उहदे कीते होए दा शुक्र करना चाहिए है। कदी इहो जिहियां वेदनावां प्रगट नहीं करनियां चाहिदियां। उन्हें पता नहीं अपनी इस जिहड़ा उन्हें बिरतांत सिरजिया इन्ने दिनां दा, इहदे नाल भी उन्हें पता नहीं किन्नियां नूं रिजक दिता होना। परमात्मा दी कल है ना, उनकी कीती करनी दे विच भी पता नहीं किन्नियां नूं रिजक मिलदा है, किन्नियां नूं रिजक मिलदा है। देखो मीह पिया, असी इको दम दोपहरी शामी आ समा ऐसा इन्हां दिनां विच मीह पिया ते शाम नूं कीड़े निकल आएगा। आ जिहड़े उगदे ने तुसीं कई वेखे होणगे। तुसीं देखो एक इन्ने छिण विच इन्हां दा जन्म कित्थों हो गया जी। गुरु पातशाह कहते हैं उनकी कला, उनकी वडियाई, उनकी रहमत को तू नहीं समझ सकता। ये तेरी मत तो बड़ी उच्ची गल है, पर हाँ जे उनके भाने विच, उनकी रजा विच, उनके शुक्र विच रहेगा, फिर तो सदा उनकी कुदरत तो कुर्बान जाएगा। फिर तो आखेगा बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई, लखिया सतगुर तेरे अंत नूं नहीं मैं लग सकता, तो कुदरत दे विच वसिया होया। एक छिन विच कितों निकल आया। देखो सारा साल तुहानूं कदी मेंढक की गड़गड़ाहट नहीं सुनेगी, पर जिवें सावन का महीना हुण मीह पैना, देखो चारे पासे। हुण सतगुर किसी सज्जन ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने, कहता मैं जानियो मन मर गयो। उन्हें डड्डू के गड़गड़ाहट के नाल अपने मन की तस्वीर दी। कहते मैं जानियो मन मर गयो, मरियो सो जू नाहे। एक खिन बंदा भगती विच जुड़दा ना, रब की बंदगी विच, मन बड़ा उच्चा हो जाता है, अगले पल बड़ा हंकार आ जाता है। कहता बस हुण ते मेरा मन काबू विच आ गया है। तो जो मन हंकार आ गया, मन फिर अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। बंदा सोचता है मन मर गया है, वो कहता है मैं जानियो मन मर गयो, मरियो सो अजू नाहे, बरखा परी कुसंग की मेंढक ज्यों गड़ुड़ाए। जिन्हें कुसंगत मिली, माड़ी संगत मिली, फिर उत्थे खड़ा हो जाता है। सतगुर कहते हैं अपने अंदर नूं बदल। बाबा फरीद साहब कहते हैं अपना नेम ना टुटण दे। जे तेरे जीवन विचों नेम टुट गया ना, सच जानी तेरे कोलों कुछ भी नहीं रहेगा। अपने जीवन का एक नेम बनाइए। साध संगत कोई भी है, देखो हर बंदा जीवन के अंदर कारज करता है। असी महाराजा रणजीत सिंह नालों ज्यादा बिजी तो नहीं होवांगे मेरे ख्याल से, जिन्होंने पहला खालसा राज कायम किया पंजाब की धरती पर। जो पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम सी, पंजाब का एक ऐसा खिता सी जिन्होंने अंग्रेज 100 साल तक यत्न करते रहे पर गुलाम नहीं कर सके। 1839 को महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत होती है। 1849 वो सारे डोगरिया की बड़िया लंबिया चौड़िया घटनावां ने। 1849 10 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार अंग्रेज पंजाब की हुकूमत कर रहे थे, पर 100 साल यत्न करते रहे। पर महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन का नेम सी, वो सवेर शाम का अपना नेम निभाया तो बिना कभी भोजन नहीं सी सकते। नेम सी उन्होंने का। उन्होंने राज में भावें कोई हिंदू सी, भावें कोई मुसलमान सी, कदे धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं सी होया उन्होंने राज में। इन्ना अमीर सी पंजाब, अंग्रेज आके इत्थे नौकरियां करते होंदे सन। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है ना भी असी उदू ज़्यादा बिजी तो कोई नहीं है। साढ़े कोई राज भाग तो नहीं चलते भी जो असी बहुत ज़्यादा खलारा खलारिया हो वेखना हो। बस जीवन का नेम जरूर निभाइए, भावें कैसी भी जीवन की अवस्था हो, कंडीशन हो। ऐसिया भी रूहां ने साध संगत जी जेड़े कभी अपने जीवन के अंदरों नेम नहीं टुटन देते। उन्होंने जीवन में वड्डी तो वड्डी घटना वापर जाए, वो अपने सतगुर अपने परमात्मा के प्रेम में इन्ने बजे होंगे ने, अपना कभी नेम नहीं भुलाते। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी आनंदपुर के किले तो निकलते हैं तो सरसा के कंढे ते कहते हैं सिखो हो जाओ तैयार, अमृत वेला हो गया, असा दी वार का कीर्तन करिए, नितनेम की बाणी पढ़ी। कमाल की गल है, सतगुर पिछे दल चढ़िया आ रहा, लखां की फौज, तो मेरे मालिक जी तुहानूं नितनेम की सुझदी भी जान बचाइए। आम साढ़े वर्गे होंगे तो नहीं कहना सी ना भी जान बचाइए, पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हैं नहीं, नेम का वक्त है, सिखां की ड्यूटी ला दी भी जाओ, इधरों फौज आएगी तुसी लड़ना, उधरों फौज आएगी तुसी लड़ना, उधरों तुसी लड़ना। साहब जी बह गए संगत को लैके, चलो नेम निभाओ। सतगुर कहते नेम, पातशाह जी कहते जाए पूछा डुहागणी तुम क्यों रैन दिहाए। बाबा फरीद साहब कहते हैं मैनूं तरस आउंदा है उन्हां दुहागणां ते जिन्हां कदे रब नूं चेते नहीं किया,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ, ਖੱਡੀ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਸਨ, ਜੁਲਾਏ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਧਾਗਾ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਨਾ ਬੁਲਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਆਨੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ